The rate of chemical reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate the activation energy. ठीक है, seemingly quite confusing. Like they have not given us anything. It seems like that. Huh? Just we have got the temperature and we have like both what they have given temperature and temperature only 10 Kelvin to 98 Kelvin. But we have to read the question very properly. You know what is happening? What the question is trying to ask. The rate of chemical reaction doubles. This is one statement. उन्होंने क्या statement लिया है? Statement provided when temperature increases from 298 Kelvin to 308 Kelvin. From 298 Kelvin to 308 Kelvin, then rate of reaction. So ये कैसे पता 308? Because it is saying that rate of chemical reaction double for an increase of 10 Kelvin. 10 Kelvin क्या कर रहा है? Increase कर रहा है. In absolute temperature from 298. 298 से 10 Kelvin increase कर रहा है. तो क्या तो reaction double हो रही है. So when temperature increases from 10 298 Kelvin to 308 Kelvin, then rate of reaction doubles. Then rate of reaction doubles. ठीक है. अच्छा फिर ध्यान देगा अब यहाँ पे. They are saying talking about rate of reaction, and we know that rate of reaction it is going to be equal to the rate constant in concentration of the reactant. ठीक है, to some power to the other. If the temperature is going to increase or decrease, the concentration is सर not आपकी going to आवाज change, लैग and order of reaction is also constant. आवाज लैग सर हो रही आपकी है? आवाज जी सर How about now? Let me read the question. अभी भी लैग हो रही है ना? अभी भी लैग हो रही है? यस सर आप क्वेश्चन नहीं पढ़े अब पढ़े आप क्वेश्चन आवाज नहीं आई क्वेश्चन आप पढ़ने की The rate of chemical reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate activation energy. अब क्लियर थी सर क्लियर है ना? ठीक है. तो ये आवाज आ रही है? हेलो. यस सर फिर से टकती आ रही है सर Okay. So when we are going to increase the temperature, the concentration of reactant not this will be not affected by temperature, but still the rate is doubling. So how the rate constant is doubling. तो एक और चीज यहाँ पे since concentration does not change, concentration does not change on increase in temperature, on increase in temperature, therefore rate will double only because K double. Only because K double. K का डबल होने पे ही क्या होगा? रेट डबल हो सकता है. तो नाउ इन दैट आर इन इक्वेशन क्या हमारे पास log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.14 हमने लिखाया था कल या नहीं लिखाया था? हाँ 19.14 लिखा है हमने, ठीक है ना?
19.14. What is 19.14? 2.303 into R is equal to 19.14. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा तो आपको आसानी होगी. 19.14 into T2 minus T1 upon T1 T2 upon T1 T2. Now we are going to plug in the value. K1 जो था पहले K था. K2 what happened at temperature? This it doubled. हाँ, K की वैल्यू क्या होगी? डबल होगी, राइट. अच्छा, और दूसरी चीज we can say that now K2 upon K1 will be equal to 2K upon K, है ना. K2 कितना है? 2K. K1 कितना है? K, तो K और K कैंसिल हो जाएगा. That means K2 upon K1 is equal to how much? It is equal to, what is T1 here? T1 is the lower temperature 298 Kelvin, and what is T2? T2 is the higher temperature, that is 308 Kelvin. ठीक है. Now we will plug in the value. So K2 upon K1 we have seen that it is equal to log 2. It is equal to EA upon 19.14. T2 minus T1, the difference in the temperature is 10 Kelvin, divided by T1 into T2, 298 into 308. 298 into 308. Once you multiply this, EA upon 19.14 into 10 upon, you are going to get this value, 91784. अब इसके बाद क्या करना है आपको? EA निकालना है ना. So by the way, what is the value of log 2? Log 2 it is equal to 0.3 है ना. तो EA जो होगा is equal to 19.14 into log 2. Log 2 value is 0.3 multiplied by 91784. This whole thing is divided by 10. Once you do all the calculations, you will get the value as 52702.3 joules per mole. You can convert this to kilojoule, it will be 52.7 kilojoule per mole. Okay, kilojoule per mole. कॉपी कीजिए इसको जरा. इतना लेट ना आ रहे हैं बच्चे. अन्नपूर्णा सिद्धू का राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस. इसको ना एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा बस, ठीक है ना. दिस इज वन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स विच मे be problematic for you guys because यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया हुआ है. Generally they will abruptly see everything, like what will happen when the temperature goes from here to here and everything, वो सारी चीजें वो दे देंगे, है ना. बट दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन जहाँ पे चीजें नहीं दी हुई है, वही तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप सिर्फ टेम्परेचर दिया हुआ, हम क्या करें, हम यही करें, ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बाकी बाकी जो सवाल है तो आराम से आपसे हो जाने चाहिए, है ना. कैलकुलेशन में वहां पे जो भी होगा होगा दिक्कत. कंसेप्चुअल पार्ट में दिक्कत नहीं होगी. यू नो व्हाट फॉर्मूला टू यूज, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन. रेज योर हैंड वंस.
Waiting for Annapurna, Khadija, Siddiqa. Annapurna, Khadija, and Siddiqa, please write it. अच्छा, I will wait 5 more seconds. Please इसके एक बार screenshot ले लीजिए आप लोग. Then I will continue with the further topic. तो बेसिकली आप लोगों से डिस्कस ही करना है कि आगे क्या पढ़ना है. आपको हम भूल गए बिल्कुल. चलिए, अब एक और सवाल है, वो डिस्कस कर लेते हैं. तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, है ना. डेटा सेट प्रोडक्ट की बात हो. For the reaction SO2Cl2, for the reaction SO2Cl2 giving SO2 plus Cl2, initially the pressure was found to be, initially was pressure was found to be 0.5 atm. After 10 seconds, the pressure was found to be 0.6 atm. Calculate the rate passing for this reaction. ठीक है ना. तो इसको भी देख लीजिए जरा कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को. Fine. तो यहाँ पे आपके पास what do you have the initial pressure and the final pressure. ठीक है, आपके पास दो ही चीजें हैं. इनिशियल प्रेशर है और क्या है फाइनल प्रेशर. व्हाट इज द पी इनिशियल इज इक्वल टू 0.5 atm and what is the pressure total. It is equal to how much? 0.6 atm and the time it is given as 10 seconds. Now, this reaction, decomposition reaction जितने भी होते हैं वो हमने लिखा है एग्जाम्पल में. When we are doing the first order kinetics, in the first order kinetics I have written that क्या लिखा था हमने. हाँ, decomposition reactions are first order. तो इसकी ये भी क्या है, first order gaseous reaction है. And for this we have seen the formula to be Kt upon 2.303 is equal to log of P initial divided by 2 times of P initial minus P total. ये हम लोगों ने किया था ना इसी क्लास में. क्या था क्या इससे पहले वाली क्लास में. हाँ, सी हियर Kt upon 2.303 log Pi upon 2 Pi minus P total. ठीक है, so we'll just use this formula and you will get the answer. क्या निकालना है आपको, रेट कांस्टेंट निकालना है. तो K will be equal to 2.303 divided by 10 log of P initial, it is equal to 0.5 upon 2 into 0.5, 2 into 0.5 minus 0.6. ठीक है, तो लॉग वाले को ना हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 0.5 अपॉन 1 minus 0.6. So this will be log of 0.5 upon 0.4. So decimals we can remove and I will get log of 5 upon 4. So this will be log 5 minus log 4. Log 5 it is equal to how much? 0.7 minus log 4 it is equal to how much? 0.6 I guess, right? 0.33 है ना. हाँ, कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा ये. So K will be equal to 2.303 upon 10 into 0.1. 0.1 भी क्या होता है, अपॉन 10 ही होता है. दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 100 will be equal to 0.02303 second inverse. This will be the rate constant of this reaction.
ठीक है, तो कॉपी कीजिए एंड थोड़ा समझ समझ के कॉपी कीजिएगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, है ना, इफ यू गेट स्टक और समथिंग प्लीज लेट मी नो। हो गया सबका? नहीं समझ नहीं। डन सर। विटनेस ऑफ खदीजा। ठीक है, नहीं है क्या? चलिए। अच्छा बताइए जरा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? कुछ बच्चे कहते हैं डीएनएफ ब्लॉक ना। कौन सा था डीएनएफ ब्लॉक? मैं सही है। आप ये कह रहे थे डीएनएफ ब्लॉक। अच्छा। और बाकी लोग के स्कूल में क्या चल रहा है, और कोई कह रहा था डीएनएफ ब्लॉक? Me too, sir. आपको भी? बट ऑल ऑफ दीज पेपर्स, जो भी पेपर होने वाला है, सारा वेकेशन के बाद होगा ना? सही है? एम आई यस सर। राइट Yes, गाइस? sir. यस सर। तो एक काम कर दीजिए, डीएनएफ ब्लॉक तो हम पढ़ा सकते हैं, बट इट इज बेटर इफ वी डू डीएनएफ ब्लॉक पढ़ाएं। देखिए डीएनएफ ब्लॉक में एक चीज हम बता दे रहे हैं आपको, दो तीन चीजें, दो तीन पॉइंट्स ऐसे जो आपको समझ में नहीं आएंगे until and unless you have studied coordination compound। ठीक है? until and unless you have studied the coordination compound, दो तीन पॉइंट्स वहां पे ऐसे जरूर है जहाँ भी आपको मतलब बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है? तो दैट इज व्हाई आई प्रेफर टीचिंग डी एंड एफ ब्लॉक आफ्टर coordination compound। ओके सर, वो भी चैप्टर आ रहा है जल्द, वो भी कर लें। ठीक है, तो ऑल दी वट एवर टेस्ट इज देयर, वो टेस्ट तो आपका कब है? सर टेस्ट विल बी एग्जैक्ट आफ्टर हॉलीडे सर, एग्जैक्ट डेट नहीं आफ्टर। पता है मगर अक्टूबर 3 से शुरू हो रहा है। अच्छा, इसे हम करा तो सकते हैं, ठीक है ना?
ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, 3 क्लासेस लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ज्यादा लगता है। क्या कहते हैं, करा दिया जाए इंडिजिनस ब्लॉक ले लेंगे। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोशिश करेंगे संडे को भी आपके हम क्लास ले लें, है ना। एंड ऐसे बताइए एक बार, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं जरा, व्हाट अबाउट अदर्स? अन्नपूर्णा, व्हाट चैप्टर डू यू वांट DNF block. टू आल्सो वांट डीएनएस ब्लॉक? Yes. Me too, sir. सबको डीएनएस ब्लॉक चाहिए? तो ठीक है, एक काम करते हैं, आई थिंक बाकी और भी बच्चे हैं, उनके भी शायद इसमें डीएनएस ब्लॉक आ रहा होगा। लेट मी जस्ट सी, एक दो लोगों ने भेजा है आज ही हमें। डीएनएस ब्लॉक सबके नहीं आ रहा है, आई थिंक, है ना। एक काम करते हैं, संडे को ही लेते हैं, ठीक है ना, संडे को हम अभी टाइम बता ही देते हैं। संडे ऑल ऑफ यू आर फ्री राइट, ये चलो, संडे Yes, सभी लोग फ्री हैं? यस Yes. सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, यस सर। संडे मॉर्निंग एवरीवन इज फ्री राइट? ठीक है। morning, what time, sir? India, मॉर्निंग व्हाट टाइम आप बताइए सभी का, डू हैव एनी टाइम इन द माइंड, बताइए। हम्म। hmm, do you have like a certain time during India? In वाह, India, क्या, सॉरी? I'm okay with any time, sir, but if you could बट just tell me like what time is it in the morning for India? अच्छा, फॉर इंडिया इट वुड बी, आई डोंट नो राइट नाउ एक्चुअली ना, बिकॉज बाकी बच्चों के, डू एनी वन ऑफ यू हैव एनी कमिटमेंट ऑन संडेज, लाइक रेगुलर कमिटमेंट किसी का है संडे का, कि किस टाइम आप फ्री नहीं होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर यस। ज्यादातर मैं आफ्टर 12 o'clock केसी के बाद फ्री होता हूँ मैं। आफ्टर 12 o'clock केएससी के बाद आप फ्री होते हैं? क्या करते हैं ना इस सुबह से? सर वो गेस्ट आए हैं यहाँ पर सऊदी अरब, तो वो आते हैं हमारे पास ज्यादातर जल्दी उठ के, तो हमारे पास आ जाते हैं वहाँ पे सुबह सुबह। अरे यार, डेली? डेली सर, हाँ। संडे के वो दिन आप, 12। ठीक है, लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है ना उनको। हाँ सर, कर ले सकते हैं, मगर ठीक है, बार हाँ 12 o'clock के अंदर भी ऐसा ले ले सकते हैं। है ना, एक दिन तो क्या, बिकॉज इफ यू टेक स्टेइंग 12 o'clock केएसए, इट वुड बी 2:30 इन इंडिया, है ना। यस सर। ठीक है, तो effectively अगर 2:30, 2:30, 2:30, 2:30, 2:30, 2:30 would work, I would say 2:30 से 4 should work, it should work. 2:30 to 4, how many of you are okay with that timing, 2:30 to 4? 2:30 से 4 तक, 2:30 to 4, हाँ 2:30 से 4 बैचलर हो गए, सही है। यही आपका तो है, ठीक Yes, है, sir. व्हाट अबाउट यस अदर? सर। Yes. तो यही सभी का अनुकूल, फाइन। मरियम, व्हाट अबाउट यू? मरियम, Okay, sir. दैट वर्क फॉर यू? ठीक है। अब लेकिन डीएनए ब्लॉक हम बैच में नहीं कराएंगे, बता दे रहे हैं आपको हम।
डीएनएफ ब्लॉक संडे 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 3 संडे में डीएनएफ ब्लॉक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, बैच में नहीं होगा फिर डीएनएफ ब्लॉक, ठीक है ना? आपको वो संडे एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, आना है आप लोग को, ठीक है? डज दैट मेक सेंस एवरीवन? यस सर, बताएं। तो सर उसका से एक्स्ट्रा बुक बनाना पड़ेगा क्या, नोट्स क्या, या कहीं किसी पीछे लिख लेना नोट्स उसके? अच्छा, नोट्स की जो प्रॉब्लम होगी, अलग से कॉपी क्या बनाइएगा आप? हम्म, चलिए आई विल, मतलब हमको बताना पड़ेगा कितने पेजेस छोड़ना पड़ेगा आपको। लास्ट ईयर का फिर अच्छा है गया वो, लेकिन डीएनएफ ब्लॉक को मतलब कैसे बताएगा, कैसे बताएं हम? 3 क्लास का है तो। अच्छा ये बताइए जरा, ये जो चैप्टर है आपका, दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, भैया कितने पेज में हो आप? केमिकल काइनेटिक्स, मुझे सर केमिकल 45 पेजेस में हो जाए। 45 पेजेस फॉर केमिकल काइनेटिक्स, यस सर। ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली मतलब देखिए, व्हाट अबाउट अदर्स? मरियम आपको कितने पेजेस लगे केमिकल काइनेटिक्स में? पेजेस बोल रहे हैं स्पीड बोल रहे हैं भैया? पेजेस बोल रहे हैं ना 45? पेजेस बोल रहा हूँ सर। हाँ ठीक है। Okay. मरियम आपको कितने पेजेस लगे? Sir, I didn't count. चीजें काउंट कीजिए तो कितने बाकी लो। 45 पेज, आई थिंक 20 पेज, 20 पेजेस विल बी मोर देन इनफ फॉर डीएनएफ ब्लॉक। 40 पेज जो है, 40 सॉरी 20 पेजेस जो है, इट विल बी मोर देन इनफ। थोड़ा छूट जाएगा तो छोड़ दीजिएगा उसको, ऐसा उसमें से मतलब कुछ और कर लीजिएगा। तो भी ही हो जाएगा 20 पेज, फिर भी हम ज्यादा ही बोल रहे थे। 20 पेज, हाँ 20 पेज बोल सकते हैं, 20 पेज कर लीजिए। 17-18 पेज होगा कुछ, हमको लगता है 20 पेज छोड़ दीजिए। मरियम व्हाट अबाउट यू, कितना पेजेस लग रहा है आपको? 28 pages. 28 पेजेस और 28 शीट्स? Sheets, 28 शीट्स, दैट मीन्स two वन शीट sides. इज वन। हाँ ठीक है, वन शीट विल बी 2 पेजेस, राइट? Yes, yes. That would give you 28 into 2, that will be equal to approximately 56 pages, right? Pages Yes, will sir. be 56। हाँ तो ठीक है, तो फिर आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं जैसे ही पेज है, जितने भी आपके पास केमिकल काइनेटिक्स लगा उसका आधा पेज छोड़ दीजिए, ठीक है? इफ यू हैव यूज्ड 40 45 वगैरह है, जैसे 56 है तो 25 पेजेस छोड़ दीजिए, 40 वगैरह है तो 20 पेजेस छोड़ दीजिए, ठीक है? 20 से 25 के बीच में अपने हिसाब से छोड़िए पेजेस। इन दोज पेजेस वी विल बी डूइंग बी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, बी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।
ठीक है, अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं. विल बी स्टार्टिंग नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, देखिए. बहुत हल्की हल्की चीजें पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको, है ना. नाउ क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या नहीं होता, सारी चीजों के बारे में बाद में. थोड़ा सा पैटर्न रिकग्निशन आपको आना चाहिए ना. जैसे 1 3 5 7 के बाद 9 फिर 11, है ना. दो टाइप ऑफ पैटर्न रिकग्निशन आप सबसे यहाँ पे पकड़िएगा, एंड दिस चैप्टर विल बी इजी. ठीक है, सो दिस चैप्टर विल रिक्वायर अ बिट ऑफ पैटर्न रिकग्निशन. क्या हो रहा है पहले, उससे फिर आप आगे की चीजें याद करो. ठीक है. So in coordination chemistry, coordination compounds, this starts from the Werner's theory. Werner did a few experiments. We are going to analyze those experiments, and those experiments से कुछ conclusions हैं. There are some concluding points. We are going to write those concluding points also. ठीक है, तो आप लोग चैप्टर का नाम डालिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें पहला टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी. ठीक है. आई एम गोइंग टू राइट अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स, है ना. हम एक्सपेरिमेंट्स के कुछ रिजल्ट हम लोग लिखते हैं. Werner was doing reaction with cobalt chloride, and then he used excess of ammonia. बहुत सारा अमोनिया उसने यूज किया, and बहुत सारे में he then later on उसे कम किया, and he found out that if he is using 1 mole of cobalt chloride and he uses 6 moles of ammonia, then he is getting a product which is yellow in color. And when this product it is treated with AgNO3, it gives 3 moles of AgCl. He did another experiment with COCl3 with the same ammonia, but he used 5 moles of ammonia for 1 mole of COCl3. He got a purple color compound. When he treated this with AgNO3, he got 2 AgCl. Similarly, when he did COCl3 plus 4 ammonia, then he got a compound which was green in color. When he treated this green color compound with AgNO3, he got 1 AgCl. Now, sometimes when he did this reaction with COCl3 and he used 4 ammonia, then he got a compound which was violet in color. When he treated this with AgNO3, he got 1 AgCl once again. Now there are some conclusions that he drew from this particular reaction. First of all, the first element, the second element, the third element, and the fourth element, whatever compounds he has formed, the yellow color compound, the purple, the green, the violet, all of these are obviously different compounds. They are not the same compound. If they will be same compound, then obviously उनका color same होना चाहिए. But their color is not same. The properties is not same. That means it is not same compound. It is not the same compound. Even though if you look at the reaction ना, तो reaction हम लोग कैसे पढ़ते हैं? Like there are two reactions ना, cobalt chloride और ammonia है. Cobalt chloride और ammonia. तो सारे में तो same reaction होना चाहिए. But now it is also depending on what? It is also depending on the amount of ammonia used. आप अगर कम ammonia use करें तो violet कभी green, a bit more will give you purple, a bit more will give you yellow color. Now this is very interesting results. That means now all the chemical reactions that you have learned, it only depended on the amount of reactant, है ना? Not the amount of reaction, but rather the nature of reactant. What reactants are you using? It never depended upon how much reactant you are using. How much से आपको क्या पता चलता है कितना प्रोडक्ट बनेगा? Right? If you are using less reactant, you will get less product. If you are using more reactant, you will get more product. But you must have not heard anywhere, you must have not learned anywhere. If you are using less reactant, you are getting different product.
if we are using more reactants, you are getting a different process. ये चीजें आपने वाली at that time Werner was the first one who observed this particular change while doing the reaction. अब उसके बाद we also saw that if I treat yellow colored compound with AgNO3, I get 3 AgCl, 2 AgCl, 1 AgCl and 1 AgCl in the last two. इसका मतलब ये होगा that ये जो येलो कलर कंपाउंड है इसमें एक आयनिक पार्ट होगा क्या, इसमें एक ऐसा आयनिक पार्ट होगा जहाँ पे CL3 होगा, है ना। ये येलो कलर कंपाउंड कुछ ऐसा होगा AlCl3 टाइप का, जहाँ पे 3 क्लोरीन के आयंस होंगे, एंड दीज 3 क्लोरीन आयंस आर गोइंग टू रिएक्ट विद AgNO3 एंड गिव AgCl, है ना। जैसे AlCl3 रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, इट वुड गिव 3 AgCl, बिकॉज व्हाई, बिकॉज वहां पे 3 क्लोरीन है। तो दैट मीन्स he interpreted that this yellow color compound will have 3Cl negative ions. उसी तरह से इसमें 2Cl negative ions. This green color will be having 1Cl negative ions, and this will be also having 1Cl negative ions. ठीक है, यहां तक आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया ना, that this yellow color compound will be having इतना Cl negative ions. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा इसके बाद वर्णन ने देखा कि नो मैटर व्हाट रिएक्शन, मतलब इफ देयर इज अमोनिया इन अ कंपाउंड ना, NH3 जैसी कंपाउंड के अंदर है, उसको कुछ रिएक्शन शो करना चाहिए, बट वो सारे रिएक्शन शो ही नहीं कर रहा, नॉट इट इज नॉट शोइंग एनी आयनिक रिएक्शन विद अमोनिया। देन ही सजेस्टेड दैट द फर्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, कि कोबाल्ट है उसके साथ अमोनिया, देयर आर 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, और बाहर उसके क्या है, just give me a second guys. बाहर उसके क्या है, बाहर उसके 3 क्लोराइड आयन, 3 Cl like this. और द सेकंड वन क्या होगा, आप देखो कोबाल्ट इसके साथ कितनी अमोनिया, 5 अमोनिया, NH3 होल 5। नाउ 3 क्लोरीन डाला था आपने, 2 क्लोरीन तो आयनिक है, 1 क्लोरीन अंदर ही कोवेलेंट होगा, एंड देयर विल बी 2 क्लोरीन आउटसाइड, और बाकी जो थर्ड और फोर्थ वाले कंपाउंड है दे विल बी समथिंग लाइक दिस, कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2 और बाहर में 1 Cl। नाउ ही सजेस्टेड 2 थिंग्स, उन्होंने कहा वी हैव लर्नड अबाउट वैलेंसीज, वैलेंसीज 2 किस्म की होती है, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी तो डिपेंड करेगा आपने कोबाल्ट के साथ कहां से स्टार्ट किया, तो ऑल दीज कोबाल्ट्स आर व्हाट, इट इज +3 +3 +3, इन सारे में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और दी वैलेंसी इज नॉट, इट इज +3। कैसे, तो सी कोबाल्ट इज गोइंग टू हैव X, अमोनिया का तो 0 होगा बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड होता है अमोनिया, अमोनिया में कोई चार्ज नहीं होता है, एंड क्लोरीन इज व्हाट, इट इज एन आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो क्लोरीन जो होता है आपके पास, क्लोरीन इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज तो कितने नेगेटिव, -3, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस -3 कोबाल्ट विल बी हैविंग +3, यहाँ पे भी X -1 -2 -1 -2 कितना हो जाएगा -3, इसको बैलेंस करने के लिए X कितना हो गया +3, फिर ऑल्सो X -2 -3, sorry -2 -1 -2 -1 will be -3, इसको बैलेंस करने के लिए X कितना हो जाएगा +3। In all of these, cobalt will be having how much charge? It will be having +3 charge. Second is the secondary valency. Secondary valency. Secondary valency अगर देखी जाए, secondary valency यहाँ पे secondary valency कितनी है, यहाँ पे देखिए अमोनिया कितने एटम से बॉन्डेड है, 6 से, यहाँ पे भी 5 और 1 6, यहाँ पे भी 5 4 और 2 6, ठीक है। तो secondary valency is also what, cobalt की primary valency in all of these and secondary valency in all of these are 6. What is different? Number of chlorine ions, number of Cl ions, number of fluoride ions are different. In the first case, number of fluoride ion is 3, in the second case it is 2, in the third case it is 1. Ionic form. Whatever is inside the square bracket, that is covalently bonded. Whatever is outside the square bracket, that is ionically bonded. ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए जरा, सवाल करेंगे फिर आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा।
ठीक है, प्लीज इसको रीड करना अभी से ही चालू कर दीजिएगा। Sir, हम्म। can you repeat how secondary valence is 6? सेकेंडरी बैलेंस है 6। देखिए, कोबाल्ट इज बॉन्डेड विद 6 अमोनिया, तो 6 हो गया। कोबाल्ट इज बॉन्डेड विद 5 अमोनिया एंड 1 क्लोरीन, देन आल्सो 6। कोबाल्ट इज बॉन्डेड विद 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, 4 plus 2 6। गॉट Okay. इट? ओके। Yes. तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस और उसका टोटल नंबर ऑफ आयंस भी कर दीजिएगा एक बार। टोटल आयंस, टोटल आयंस देखिए, 3 क्लोरीन, अगर ये आयनिक है, ये पूरा एक आयन होता है, ठीक है। जो होल स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, वो एक आयन है। तो 3 क्लोरीन और एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला कितने होंगे? टोटल आयंस 4। हियर वी हैव वन स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, एक पूरा का पूरा ये क्या है? दिस इज आयन, एंड देन यू हैव व्हाट, देन यू हैव Cl, तो 2 क्लोरीन है, तो 2 और 1 3, यहाँ पे 2 आयन थे बस। एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला और एक जो बाहर क्लोरीन है वो। टोटल नंबर ऑफ आयंस इतना है। Copy this down, raise your hand once you're done. Waiting for Khadija, Siddiqa and Yahya. Khadija, waiting for you. और खदीजा है ही नहीं क्या क्लास में? ठीक है, तो कितने आयंस होते हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही 1 आयन है ना, और उसके बाद बाहर जितने उसको आप उतनी मतलब जितने भी उसको काउंट कीजिएगा फिर, ठीक है। 1 स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स 1 आयन। चलिए एक सवाल कीजिए जरा उसको। हाउ मेनी आयंस पर मोल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन वैसे छोड़ दीजिए, इतना आपको सवाल मतलब हाउ मेनी आयंस पर मोल ऑफ द फॉलोइंग पर मोल, इतना इसके बाद छोड़ दीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा है, जितना जितना आपको समझ में आ रहा है उसी के हिसाब से आंसर लिखिए, ठीक है।
आराम से आंसर आ जाएगा इसका ना, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। वन स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स वन आयन, उसके बाहर जितने भी उसको काउंट कर लीजिएगा ना, उसके बाहर कितना उसके बाहर कितने एटम्स है। एक और इसमें लिख लीजिए, वो है ना 5 कर लीजिए इसको। हो जाएगा ना मरियम, अन्ना, सदीका, यहिया, क्या ख्याल है। सर फिर पहला वाला करके बता सकते हैं? अरे अब बताओ ना, कितने स्क्वायर ब्रैकेट कितना है, कितने स्क्वायर ब्रैकेट वाले कितने हैं यहिया। दो सर। दो स्क्वायर ब्रैकेट है क्या, एक ही है ना स्क्वायर ब्रैकेट तो। हाँ, ठीक है, तो एक वो आयन हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने आइटम है, दो सर। तो टोटल कितना हो गया। दो। अरे भाई मेरे, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला, बोलो एक कौन सा, ये एक एक कौन बाहर सा। वाला। नहीं एक पहला बताओ ना, पहला हरवाना नहीं है, एक कौन सा बोलो स्टार्टिंग से। एक एक स्क्वायर ब्रैकेट अंदर वाला। अंदर वाला नहीं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना पूरा का पूरा, वो एक यस आयन है। सर। पूरा का पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, एक आयन, और उसके बाहर एक कितने हैं। दो। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया। तीन। ठीक है, अब बताओ सेकंड वाले में एक पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है, यस सर। और उसके बाद बाहर कितने हैं, एक। तो टोटल कितना हो गया। दो। स्क्वायर तीसरे वाले में स्क्वायर ब्रैकेट कितने हैं? दो सर। कुछ नहीं है ना, जी। लो बस स्क्वायर ब्रैकेट यस वाले हैं सर। ना, तो हम कह रहे यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट वाले कितने हैं। दो सर। टू। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है, नहीं सर। तो कितने हो गए। टू। ठीक है, फोर्थ में देखो, स्क्वायर ब्रैकेट कितना, एक। उसके बाहर एक। हो गया। अब करो फोर्थ के वाला, कम से कम खुद से करो। वंस यू डन सेंड द आंसर ऑन जूम चैट, कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा आंसर को। ओके मरियम, आई थिंक दैट इज करेक्ट। यस आई एम करेक्ट, जस्ट वेटिंग फॉर सदीका एंड यहिया नाउ।
Just waiting for Siddiqa and Yahya. Just waiting for Siddiqa and Siddiqa भी चली गई। यहिया जल्दी आंसर दीजिए ना, कितना आ रहा है आपका? सर 1 मिनट से टाइप कर रहा हूँ। तो जल्दी टाइप, कॉमा से सेपरेट करो भाई, इतना टाइम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही भेज दो बस, सजाने की जरूरत नहीं है प्लीज, ठीक है ना, ये जल्दी भेजिए, हम समझ जाएंगे। अरे भाई कितना टाइम लगा रहे हैं भैया, जल्दी करो ना, आंसर लिखना है सिर्फ यहिया। अच्छा बोल दो, आंसर बोल दो यहिया, बोल दो, पहले वाले में कितना? यहिया। पहले वाले में सर 2 है, 3 है सर 3 है। उसके बाद 2 है सर। उसके बाद 2 सर। उसके बाद 2 सर। उसके बाद 4 सर। वेरी गुड, सही, वेरी गुड। ठीक है, अब थोड़ा ना इसमें अब इंफॉर्मेशन आती जाएगी कुछ कुछ आपके पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो है COCl, NH3 होल 5, और बाहर में क्या है Cl2, दो क्लोरीन। ये अगर आयोनाइज होगा देन व्हाट विल हैपन, दो क्लोरीन का क्या निकलेगा, 2Cl नेगेटिव प्लस COCl NH3 होल 5। अब यहाँ पे दो क्लोराइड है, दो नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड देखिए, आपके पास है AgNH3 होल 2 और बाहर में Cl, ठीक है। तो एक क्लोराइड आयन बाहर निकल रहा है Cl नेगेटिव प्लस वट एवर इज इन द इनसाइड द, ये ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, स्क्वायर ब्रैकेट वाले के ऊपर चार्ज कितना होगा, +1 टू न्यूट्रलाइज है ना। तीसरा वाला देखिए, PP NH3 होल 4 और जो है PTCl4, इसमें आपको मिलेगा PP NH3 होल 4 ना, वट एवर चार्ज इस पे हो, कुछ भी चार्ज इस पे हो, है ना, एक्स पॉजिटिव हो, मतलब 3 हो 4 हो 5 हो, किसी को जो भी हो, जितना भी पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, अभी हम लोग को पता नहीं है ना, बिकॉज इसमें कितना चार्ज इसमें कितना, कुछ नहीं बता दिया हम लोग को, ठीक है ना। PTCl4 यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, ठीक है। अब जैसे सर आपको कैसे पता क्लोरीन Cl पे माइनस चार्ज होगा, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, क्लोराइड आयन होता है ना। उसी तरह से फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला तो कर लीजिएगा, फिफ्थ वाला देख लीजिए। फिफ्थ वाले में क्या है, आपके पास है K3FeCN6, K3FeCN6, K पॉजिटिव होगा प्लस वी विल हैव FeCN होल 6 3 नेगेटिव, ठीक है। इसको बस एक बार लिख लीजिए आप लोग, है ना, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख लीजिए बस एक बार। रेज योर हैंड वंस यू डन राइटिंग। मेरे जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए हम नंबर ऑफ हैंड्स बता देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ हैंड्स होगा 3, यहाँ पे नंबर ऑफ हैंड्स 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4,
These are the number of ions. Everyone is done writing? Very good. अगला फिर से सवाल है, ठीक है, सवाल आराम से हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा ना। सवाल को आराम से पढ़िए, आराम से लिखिए सवाल को, ठीक है ना, आराम से कीजिए, बिल्कुल सवाल को पढ़िए आराम से, बिल्कुल आराम से कीजिए। लिख पढ़िए, पढ़िए लिखिए, उसके बाद हम एक सवाल कर लेंगे इसमें से। सवाल लिख लीजिएगा तो बताइएगा। Done, sir. कौन सा सवाल बताए, देखिए, मोल्स ऑफ एजीसीएल Sir, one प्रेसिपिटेट जो है minute. ना वो बता भी नहीं दिया आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। Done, sir. वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वॉट एवर वर्नर डिड, ही ऑल्सो फाउंड आउट व्हाट, he also found out number of chlorine outside, like number of moles of AgCl जो भी मिल रहा था आपको, जैसे फॉर एग्जांपल if you are getting 3 AgCl that means 3 chloride ions, उसका मतलब 3 क्लोरीन बाहर है। 2 AgCl मतलब 2 क्लोरीन बाहर, 1 AgCl मतलब 1 क्लोरीन बाहर, है ना। उसी वजह से यहाँ से लाइक यू हैव COCl3 और 4 अमोनिया, ठीक है, COCl3 के साथ आपने कितना अमोनिया डाला, 4 अमोनिया, है ना। अब आपके पास बताना है क्लोरीन कितने बाहर होंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो पहले वाले का जो आंसर बनेगा ना ऐसे होगा, कोबाल्ट 4 के 4 अमोनिया तो अंदर ही होंगे, ऑल द 4 अमोनिया विल बी इनसाइड, ठीक है ना। अच्छा क्लोरीन ऐसे कर लेते हैं, तो क्लोरीन बाहर कितना रहने वाला है, एक बाहर रहेगा, तो अंदर कितना रहेगा बताइए। वी हैव 3 क्लोराइड्स ना, 3 क्लोरीन है आपके पास, बाहर एक रहेगा, तो अंदर कितने रहेंगे, 2, अंदर sir. अरे बोलो, Two. 2 रहेंगे, हाँ वेरी गुड। Cl2 अंदर, 2 अंदर और 1 क्लोरीन बाहर,
अब उसने एक और चीज बोली है, असाइन द सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, असाइन द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्या देखना है, कोबाल्ट के पास 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, 4 और 2 6, सेकेंडरी वैलेंसी विल बी 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में आप लोग बताइएगा हमारे पास क्या लिखना है, बताइए। स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखे हैं बताओ। PD स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद पी डी, उसके बाद ब्रैकेट NH3 ब्रैकेट में NH3, कितने NH3? 4 सर 4 NH3। उसके बाद अंदर कितने क्लोरीन रहेंगे? 2. अंदर कितने क्लोरीन रहेंगे? हाँ अन्नपूर्णा, व्हाट डिड यू से? 2. तू तो बाहर रहेंगे ना, देखो बाहर कितने रहेंगे बताओ, बाहर कितने रहेंगे? तो सर अंदर 0 रहेंगे। अंदर 0 रहेंगे सर, है ना, अंदर एक भी क्लोरीन नहीं रहेगा, बाहर ही रहेंगे तो। ठीक है, यही है। अब आप माइक ऑफ कर लीजिए, आपको समझ में आ गया, अब खुद से आगे कीजिए, है ना। ठीक है, ओके सर। ओके ओके भैया। ठीक है, सेकेंडरी बैलेंस यहाँ पे कितनी हो ओके जाएगी? सर। सेकेंडरी बैलेंस विल बी इक्वल टू, टेल मी गाइस, सेकेंडरी बैलेंस कितनी हो जाएगी? दिस पैलेडियम इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने हैं? सर मैं बोल सकता हूँ? 4, 4 ना। यस सर। ठीक है, मरियम एंड अन्नपूर्णा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन। अभी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज, मरियम एंड अन्नपूर्णा। ठीक है, समझने से पहले अगर लिख लीजिएगा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मरियम एंड अन्नपूर्णा, प्लीज टर्न योर माइक ऑन। Sir, Yes, for sir. the हाँ, second one, why is Cl2 out? बिकॉज द नंबर, देखिए माइक ऑफ कर लिया आपने अन्नपूर्णा। आज जब तक Sir. आपका डाउट क्लियर नहीं हो, माइक ऑन करके रखें ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ Cl आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट में। देखिए, COCl3 plus Cl, 3 moles of AgCl is telling us 3 chloride ions. 3 chloride ions is saying us 3 chlorines will be outside. दिखा आपको? Yes. Got it अन्ना? Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लोराइड, नंबर ऑफ AgCl will give us the number of chlorines outside. ठीक है, बोलिए। नंबर ऑफ AgCl will give us number of chlorine outside, बोलो। Number of AgCl will give the number of chlorine outside. नंबर ऑफ क्लोरीन, Sir, how is it 4? How is it 4? Secondary valency. मरियम, how is it 4? Palladium is bonded to how many ammonia? 4. 4. Is it bonded to anything else inside the square bracket? No. Okay. Got it? ठीक है, अगले में देखिए, we have nickel, उसके बाद क्या डाले बताइए जरा। निकल एंड देन इन द ब्रैकेट्स, मरियम एंड अन्नपूर्णा प्लीज कीप योर माइक ऑन ना, बताइएगा तब तो आंसर आएगा जी। H2O. निकल एंड देन H2O. 6. H2O, 6. how many H2O? 6. 6 H2O, okay। अच्छा, how many chlorines are outside? 2. 2. How many chlorines are outside? 2. 2। 0. इनसाइड कितने होंगे फिर? 0. इनसाइड विल बी None. 0। अन्ना, you got this? Yes. हाँ, very good। The secondary valency will be 6. 6. 6। ठीक है, अब ये HCl वाला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, HCl मतलब यहाँ पे ऐसा है ना, देखिए बेसिकली HCl क्या होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस ना। अ, क्या बताएं हम आपको, तो थोड़ा सा अलग है। PTCl4, PTCl4, और ये HCl ऐसा होगा, एक्सेस, 2 एक्सेस होंगे और 2 Cl नेगेटिव होंगे। और समझ में आ रही है ना। तो टोटल अगर आप देखें, PTCl4 Cl6 है ना, और 2 हाइड्रोजन है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, यस ये तो सर। होगी, ये हमको भी बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, फोर्थ वाले का जो, इट विल बी H2 एंड PTCl4। ठीक है ना, बिकॉज 2 H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव सारे भी कटायन है ना, तो सारे के सारे क्या है, कटायन है। तो नहीं, PTCl6 हो जाएगा, बिकॉज देयर आर 6 क्लोराइड आयंस, तो 6 क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, 6 Cl। सेकेंडरी बैलेंस यहाँ पे क्या होगी, तो भी इक्वल टू 6। हम आपको थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। यहाँ पे क्या है, PT
2Cl है, total PtCl6 है, dot 2H positive, 2H positive. Now we are getting zero chlorine outside. Chlorine outside कितने में? Zero होंगे, तो PtCl6 तो bracket में होगा. Now hydrogen, since it is an cation, it is a cation, it is in the form of cation. How many hydrogen? There are two hydrogens which are in the form of cation. तो cation को क्या रखते हैं? सारे रहते हैं. तो जब भी आप NaCl लिखते हैं, Na is positive and Cl is negative. ठीक है, तो because H is positive उसको पहले लिखा जाएगा, H2PtCl6. ठीक है, अब देखिए जरा अगला वाला हो जाएगा, अगला वाला आसान है. It is Pt and then we are going to have NH3 whole twice, and then outside we are going to have two chlorine ions. Secondary valency will be equal to. Copy this down. So raise your hand once you're done.